मुश्किल हो भी, लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Hello everyone, my name is Arsha Sharma and this year I have secured the 3rd rank in the HAS exam. So firstly, 2 years back I had cleared the exam with the 18th rank and I was in the Excise and Taxation Department for 2 years. So that is how my journey had started, and my optional was psychology in both the attempts. So firstly, starting with my family was really helpful throughout the process. My dad also cleared HAS in 2002, so that was a great guidance to me throughout. My mother was really helpful in the entire process. Both of them really guided me, and overall also, like, to have a parent who's in the services, it really helped me. Like with my optional also, like I could prepare the same optional that he did, and he was able to guide me with the books and the material and everything. So that really helped. Apart from that, I went to certain institutes and I was in touch with a couple of teachers. Bhushan sir and his Civil Square Academy was really helpful, like in the prelims and the mains process, even during the interview. Then Nidhi ma'am and the S&M Institute, they really helped me with my optional and the mock interviews, and so did Nimbus Academy and Rajiv sir. So I would really like to thank all of these teachers for their great support throughout. Apart from that, starting with the strategy, we all know there are 3 rounds in the interview. In the entire process, there are 3 rounds, starting with prelims. So prelims is basically, you'll have 100 questions to do, and like for GK and for CSAT. And what happens is, like, I was from an engineering background. I did my computer science engineering from JP University. So CSAT, like, we had been preparing CSAT even during our interviews and placements. So my CSAT was strong, so I did not really have to prepare a lot for this exam. But there are certain people who are not very good with CSAT, so I would recommend that solve previous year papers. And if you're scoring above 50% in your mocks or in your previous year papers, you don't really have to worry about it. It's just 33% marks, but of course, like, even if you lose a mark, so the entire year goes to waste, even if you're scoring great in GS. So it's very important. So like, if you are giving a previous year paper and you score around 40%, then do not take it very lightly. Prepare it well. Like, prepare all the formulas from previous age questions and the English related questions. Prepare them well. Prepare your logical reasoning well. All you have to do is, like, get above 33% marks. It doesn't matter if it's a 67 also, like out of 200, you will clear the exam. But still, to be on the safe side, if you're very close to the cutoff, make sure that you practice certain questions, because otherwise you will regret it later. And after that, coming to the GS part, try not diverging yourself with multiple sources. बहुत सारे sources से फिर बाद में revision में भी issue होता है, तो try sticking हर एक subject के लिए to one book. हिमाचल point of view से prelims के लिए जोगटा academy की book is really good, and इस बार भी like we saw कि 25 questions हिमाचल से आए थे prelims में almost. So your Himachal should be very well prepared. So Balokhra is also a good book for history and geography and these subjects, but current and hydroelectricity and what all is going आजकल, उससे अगर आपको topics उनको cover करना है, तो it's better that आप जोगटा को like जोगटा academy की book को prefer करें. Apart from that, economic survey, budget, India का, हिमाचल का, both of them are very important. उनकी copies please collect करके start learning them as soon as they come out. इसके facts and figures will not just help you in prelims, not just in mains, they'll also help you in your interview. तो जो न्यू स्कीम्स आ रही हैं वो कहीं पे भी मेंस में भी आंसर राइटिंग में काम आएंगी. एज इट इज़ प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि ये स्कीम किसके लिए है या इसमें कितना अमाउंट है. तो ओवरऑल जस्ट प्रिपेयर द बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेल. एंड इंडिया का भी थीम क्या था बजट का, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो अच्छे से किस सेक्टर को कितना अलॉटमेंट हुआ, इनका मेक अ टेबल, या फिर अगर बजट से कर रहे हो तो अच्छे से अंडरलाइन इट सो दैट बाद में रिवाइज कर लो. तो
लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इनको बजट के 100 क्वेश्चंस हैं, तो अगर बजट छोड़ के जाओगे तो 2-3 क्वेश्चंस जो अगर पढ़ के लाइक पता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो उन टॉपिक्स को लाइक हमें करके ही जाना चाहिए, बिकॉज पूरा पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें प्रीवियस बहुत सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नोबेल प्राइज़ इज़ वन सच टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आता है। तो अगर आप वो पढ़ के नहीं जा रहे हो तो दैट्स लाइक अपने जानबूझ के मार्क्स कटवाने वाली बात। जब उसका श्योर क्वेश्चन है तो डू दीज क्वेश्चंस, थोड़ा एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर पेपर्स का, बहुत आगे के लिए हेल्प हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिमाचल के लिए रेफ़र टू न्यूज़पेपर्स, थोड़ा करंट अफेयर्स में जो आता है उसमें हेल्प मिल जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कहीं पे कोई प्लांट स्टार्ट हुआ, कहीं पे कोई क्रॉप स्टार्ट हुआ, कोई डिजीज़ चला हुआ है सपोज़ क्रॉप रिलेटेड या कुछ भी, तो उनका थोड़ा सा 1-1 लाइन 2-2 लाइन के नोट्स बना लिए। वो प्रीलिम्स में भी दे विल कम इन हैंडी, मेंस में भी एंड इंटरव्यू में भी। तो न्यूज़पेपर्स लाइक ट्रिब्यून में 3-4 पेजेस आर लाइक डेडिकेटेड टू हिमाचल, उसमें अच्छा वो होता है। न्यूज़पेपर्स लाइक अमर उजाला एंड ओवरऑल हिंदू इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर, बट लाइक वो है नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉट जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में चाहे आपको उसके उतने क्वेश्चंस ना मिलें, बट ओवरऑल हिंदू का अगर आप एनालिसिस रोज़ हाफ एन आवर भी अगर आप करते हो या यूट्यूब पे भी देखते हो, तो इट हेल्प्स यू प्रिपेयर अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू। वो लाइक पूरे बैकग्राउंड के साथ आपका प्रेपरेशन करवाते हैं। अगर बिम्स्टेक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है सपोज़, तो उसका पहले बैकग्राउंड क्या है, हाउ इट स्टार्टेड, तो वो पूरा आइडिया लग जाता है। तो लाइक 40 मिनट्स का एनालिसिस होता है बेरली यूट्यूब पे उसका। तो इफ़ यू वॉच दैट एवरी डे, आई फील वो बहुत हेल्पफुल रहता है मेरे लिए भी। लाइक सर्टन टॉपिक्स में इट गेव वेरी गुड इनसाइट्स, लाइक काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपका प्रिपेयर हो जाता है, अनबायस्ड एंड अच्छे से यू अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन, तो दैट हेल्प्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री जोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड बुक। प्रीलिम्स में आपको, प्रीलिम्स क्या मेंस में भी आपको एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन मुश्किल से, या फिर वो भी नहीं आता है। वो हिमाचल की मिडीवल हिस्ट्री से, मुगल्स एंड ऑल से फिर भी आ जाते हैं, बट इंडिया की मिडीवल हिस्ट्री से यू बेयरली गेट क्वेश्चंस। सो मैंने पर्सनली वो 2 टॉपिक्स उतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किए थे, बट इफ़ यू वांट टू तो यू कैन लाइक ईदर यू कैन टेक अ स्मॉल बुक लाइक मनोहर पांडे जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, या लूसेंट जिसमें पूरा थोड़े ब्रीफ में दिया हुआ है। एल्स यू कैन रेफर टू NCERTs फॉर दिस। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट स्पेक्ट्रम, इट्स अ वेरी गुड बुक। उसमें एंड में जो अपेंडिक्स दिया हुआ है उसी से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं एवरी ईयर, तो स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। फिर कमिंग टू जोग्राफी में माजिद हुसैन इज़ अ गुड बुक एंड GC लियोंग इज़ अ गुड बुक। दोनों ही लाइक एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वर्ल्ड जोग्राफी, तो दोनों ही आपके टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों बुक से कवर हो जाएंगे। देन इन्वायरमेंट के लिए आई पर्सनली रेफर टू शंकर IAS, एंड साइंस के लिए आई स्विच बिटवीन मल्टीपल बुक्स। लाइक मैंने NCERT से थोड़ा रेफरेंस लिया था, उसके बाद मैंने लाइक 6 to 10th वाली NCERT से थोड़ा रेफरेंस लिया था, एंड देन आई टुक थोड़ा सा मनोहर पांडे, लूसेंट इन उनसे। अदरवाइज आई डिड नॉट गो इन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक बुक व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड आई वुड ब्रश अप माई करंट अफेयर्स कि अगर उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है। देन मूविंग टू इकोनॉमी, रमेश सिंह इज़ अ ग्रेट बुक, एवरीबडी नोज, लाइक सबको आई गेस इकोनॉमी के लिए सबसे पहले वही बुक रेकमेंड की होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, संजीव वर्मा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, तो उसका भी लाइक आप देख सकते हो कि वो छोटे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट इकोनॉमी अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो स्विच टू संजीव वर्मा ऑल्सो, अच्छे से मतलब पहले थोड़े छोटे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा सारा। एंड देन इकोनॉमी इज़ बेसिकली, अगर आप बजट और सर्वे अच्छे से कर लेते हो और उसके टर्म्स अच्छे से कर लेते हो, काफ़ी हद तक इकोनॉमी उसमें कवर हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिक टर्म्स की व्हाट इज़ डियर मनी, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या हैं चीज़ें, तो इसका थोड़ा सा लाइक यू गेट, यूट्यूब हैज़ लेक्चर्स ऑन एवरीथिंग। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा, दिस वॉज वन ऑफ माई गो टूज़ कि कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आई वुड स्विच टू यूट्यूब कि वहाँ पे, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ने एक बहुत अच्छा लेक्चर डाला होता है जिससे यू कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वेरी वेल। मैं बोल रही हूँ अगर बुक से समझ नहीं आता, अदरवाइज बुक शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बट कभी होता भी है कि पढ़ने का इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, फिर थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होता है, सो यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच अ वीडियो, तो थोड़ा ब्रशअप भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। देन प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स बहुत आएगा, तो लाइक देर आर बहुत सारी वेबसाइट, इनसाइट्स,
GK टुडे जो डेली के लाइक क्विजेस पोस्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर पेजेस ऑन टेलीग्राम जो डेली के क्विजेस पोस्ट करते हैं, डेली के करंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं. तो जॉइन दोज पेजेस. फिर या फिर यूट्यूब या किसी GK टुडे टाइप पेज पे जस्ट गो देयर एवरी डे और उनके डेली करंट अफेयर्स देखो. एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. थोड़ा दैट इज़ वाई आई एम सेइंग बार बार कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करो, बिकॉज फिर आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें ज़्यादा आती हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ पर्टिकुलर पैटर्न दैट यू विल बी एबल टू फाइंड. तो उसको अगर आप समझ लेते हो तो आपकी स्टडी विल लाइक चेंज इनटू स्मार्ट स्टडी. अगर आप वो पैटर्न समझ पाते हो तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें इग्नोर कर सकते हो जो आपको पता है कि एग्जाम में नहीं आएंगी. तो वो चीज़ें लाइक एलिमिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है तो कैसे कौन से टॉपिक्स को बार बार देखना है, कौन से टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैंने अपने टाइम पे वो बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही ज़्यादा एनालिसिस किया था. लाइक ऑफ कोर्स टीचर्स भी बताते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है, बट खुद भी गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स, देखो कि क्या आ रहा है हर साल. कुछ मेंस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2-3 साल से एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, एमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल. तो जब पता है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पक्का आ सकते हैं तो प्रिपेयर देम वेल, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. प्रीलिम्स में भी नोबेल प्राइज़ लाइक आई सेड, वेरियस इंडिसेस में इंडिया की क्या रैंक है और उस इंडिसेस में टॉपर कौन है. तो ऐसे क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट. कुछ अगर कोई एयरक्राफ्ट या कोई मिसाइल लॉन्च होता है तो दीज क्वेश्चंस जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में होते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट. एंड पिछले एक पूरे ईयर का ये अच्छे से करके जाना. सपोज अभी जून में भी अगर प्रीलिम्स होता है तो लास्ट ईयर जनवरी से प्रिपेयर इट, बिकॉज इतना पीछे आ जाता है करंट अफेयर्स में. लाइक ऐसा नहीं होगा कि इसी साल के जनवरी से करंट अफेयर्स होंगे. एंड अगर आप 6 मंथ्स के पढ़ के जाओगे उससे काफ़ी कम क्वेश्चंस आएंगे. सो लाइक थोड़ा गो गेट इन टू द पास्ट एंड पिछला एक पूरा ईयर के अच्छे से करंट अफेयर्स करके जाना, बिकॉज ऑलमोस्ट हिमाचल एंड GS इज़ लाइक 50 क्वेश्चंस, तो हाफ आपका इसी में कवर हो जाएगा. And sorry, I forgot to mention the book for polity. Lakshmikant is like the book for everybody. सारे chapters उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. Everything is very well explained. कोई latest judgment आती है तो उसको just make a notebook like for all your notes. उसमें जिसमें या अपनी polity वाली जो notes की book है उसमें उसको आगे supplement कर लेना. कोई नई judgment आ रही है, Supreme Court कुछ बोल रहा है तो वो like it comes in handy for answer writing also. So prelims में basically it is this, the cutoff keeps on changing and try कि 110 से आपका स्कोर ऊपर रहे, 115 in fact, because that is a safe score. इस बार एग्ज़ाम टफ था तो probably 100 या 105 के बीच कट ऑफ गई होगी, but overall try and keep your target इतने के around like कि 115 के आसपास, because that's a safe score. Apart from that अभी जैसे लास्ट ईयर कंपैरेटिवली टफ एग्ज़ाम आया था, उससे पहले ओवरऑल इजी एग्ज़ाम आया था, तो कट ऑफ विल वेरी. बट आप अपना ट्राई करो कि अगर पेपर इजी भी आ रहा है तो डोंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस लाइक अनलेस यू एक्चुअली नो ऑल ऑफ दैट, बिकॉज एंड दैट इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल कि आपको 100 के 100 आते होंगे. अगर कुछ नहीं आ रहे, देयर विल बी अराउंड 10-15 क्वेश्चंस जो आपको नहीं पता होंगे. लीव देम, बिकॉज चांसेस आर कि उसमें हो जाती है गलती. तो अगर देर आर लाइक क्वेश्चंस जिनमें आपको 2 ऑप्शंस के बीच में डाउट है, डू दोज क्वेश्चंस. बट अगर चारों ही ऑप्शंस फील लाइक कि इनमें से कुछ सुना ही नहीं है या आता ही नहीं है, डोंट ट्राई टू मेक अ वाइल्ड गेस कि अगर 2 D's हैं ऊपर तो इसमें इस साइड हो जाए. मतलब डोंट ट्राई टू डू ऑल दोज ट्रिक्स, वो नहीं यूजुअली वर्क करती. सो अब लाइक ट्राई करना कि नहीं आते 10-15 क्वेश्चंस तो इट्स ओके. अगर आप 85, 80, मेरी दोनों टाइम्स लाइक 81, 82 इसके अराउंड ही अटैम्प्ट रहा है प्रीलिम्स में. एंड लाइक द फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड अराउंड 114 मार्क्स एंड दिस टाइम आई एम स्कोरिंग अबाउट 103-104 के अराउंड. सो लाइक 81 क्वेश्चंस इज़ अ डिसेंट अटैम्प्ट. 81 क्वेश्चंस इट डज यू वेल. एंड एलिमिनेशन मेथड थोड़ा देखना होता है कि 2 ऑप्शंस, अच्छा ये तो रिलेटेड हो ही नहीं सकते, तो मतलब थोड़ा सा अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आप 1-2 ऑप्शंस हटा पाओगे. तो अगर फिर 2 में ही वो रह जाता है तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपका वो ठीक हो सकता है, बिकॉज लाइक प्रोबेबिलिटी वाइज भी. सो इन दैट केस लाइक उस केस में अटैम्प्ट कर दो. अदरवाइज अगर चारों का ही कुछ आइडिया नहीं है सो ट्राई नॉट अटेम्प्टिंग इट. एंड 78 to 85 इज़ अ डिसेंट अटैम्प्ट आई फील, बिकॉज अगर आपको 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दोगे एंड यू फील ऑल 60 ऑफ देम विल बी राइट तो वो भी यूजुअली नहीं होता.
तो अगर 4-5 क्वेश्चंस भी गलत हो गए तो फिर बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग वो बहुत नीचे आ जाएगा. सो लाइक कि थोड़ा सा सेफ स्पेस लेके अच्छे से थोड़ा लाइक कीप इट अराउंड 70-80, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेके कीप योर अटेम्प्ट्स. नाउ कमिंग ऑन टू मेंस. So firstly starting with Hindi and English, both of them again like CISA they are qualifying. 40% marks आपको चाहिए and but वही है कि a lot of people उनका इंग्लिश या हिंदी की वजह से लाइक दे गेट डिस्क्वालीफाइड एंड बहुत अच्छा स्कोर होता है मेंस में. सो ट्राई कि उस पर भी थोड़ा फोकस हो जाए एंड लाइक आई ऑलवेज से कि प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के थोड़ा उनको सॉल्व करो, देखो वेयर यू स्टैंड. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वेयर यू स्टैंड ऑन दोज. इंग्लिश जिनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, प्रिपेयर द फॉर्मेट्स वेरी वेल. लेटर है, रिपोर्ट है, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं. प्रेसी है तो प्रिपेयर दोज थिंग्स वेल. समरी राइटिंग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ ताकि आपके थोड़े मार्क्स सिक्योर हो जाएं. एंड देन प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, दीज थिंग्स जो आए हुए हैं पहले, तो उनकी थोड़ी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके चले गए तो फिर वहाँ पे इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी. उनको मतलब थोड़ा आइडिया लग जाता है स्टेटमेंट्स देख के. देन कमिंग टू हिंदी, हिंदी के लिए प्रिपेयर द ग्रामर वेरी वेल. मुहावरे, देन विलोम शब्द, पर्यायवाची, ऑल ऑफ दीज, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं तो प्रिपेयर देम वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसलेशन से देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन. सो ट्रांसलेशन के लिए न्यूज़पेपर में थोड़े वर्ड्स थोड़े लुकआउट करना स्टार्ट कर दो. हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेरियस वर्ड्स के लिए जो पॉपुलर वर्ड्स हैं उनका थोड़ा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की वहाँ पे अगर आए तो आपको इजी रहे. तो उससे भी लाइक उतना प्रेशर वहाँ पे फील नहीं होता बिकॉज पहले ही वो वर्ड्स देखे हुए होते हैं. तो ट्रांसलेशन आएगी तो 20 मार्क्स उसमें सिक्योर हो जाते हैं. अब उसके देर विल ऑल्सो बी एन एसे. तो एसे के लिए भी जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ. फिर वहाँ पे लाइक यू आर एबल टू राइट. उसमें भी वर्ड्स हेल्प, अगर ट्रांसलेशंस की हों और अच्छे अच्छे वर्ड्स प्रिपेयर किए हों, सोशल को, सामाजिक एंड ऑल ऑफ दीज, तो अगर आपने एसे में यू यूज़ गुड वर्ड्स तो दैट एड्स अप टू योर एसे, तो दैट विल हेल्प. देन मूविंग टू योर एसे, like your essay ka the essay paper which is for 100 marks, you have to attempt 2 essays and you get a good number of choices, so that won't be an issue. ऐसा नहीं है एक ही ऐसे आएगा तो like वही attempt करना पड़ेगा. You get a good number of choices, so अच्छे से सब choices को पढ़ के make a very uniform decision. Essays की preparation के लिए the tip is कि you should have a lot of data prepared. अगर बिकॉज ऐसे आएगा एजुकेशन से आ जाएगा, वायलेंस से आ जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट से आ जाएगा, तो उसमें आपका डेटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, थोड़ा कोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए. इट्स गुड टू स्टार्ट एंड एंड योर एसेज विद डेटा एंड अ कोट एंड ट्राई टू कीप योर अप्रोच पॉजिटिव ओवरऑल एसे में. लाइक एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट कम अप विद द सोल्यूशन, तो दैट शुड बी योर अप्रोच. उनको थोड़ा लगना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से आ रहे हो एंड लाइक वो आपके आंसर्स एसेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो डोंट बी वेरी नेगेटिव अबाउट थिंग्स. हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना डज नॉट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन, तो ट्राई बीइंग पॉजिटिव. देन मूविंग ऑन टू द GS पेपर्स. GS इज़ बेसिकली लाइक एवरी टॉपिक, उसमें पूरा डिटेल में आपको सिलेबस में दिया हुआ है. द टॉपिक्स आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. तो वो सारे टॉपिक्स भी अगर आप लाइक जस्ट अपने ऑप्शनल के लिए भी, GS के लिए भी, जितने भी टॉपिक्स दिए अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो वहाँ पे देयर इज अ माइन्यूट चांस कि उसके बाहर से कुछ आएगा. मेनली उससे सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे. सो व्हाट हैपेंस इज कि स्पेशली जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बैट बेगार रीत, लाइक द IT पॉलिसी इन हिमाचल, द टूरिज्म पॉलिसी, वो एज इट इज़ दिए हुए हैं, तो उनको तो लाइक अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ ही, बिकॉज वो एक एक टॉपिक है सिर्फ. लाइक हिस्ट्री इज़ वास्ट, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, बट जो एक एक ऐसे करके लाइक डिफाइन किए हुए टॉपिक्स हैं उनको यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल. अच्छे से उनके नोट्स बना के या किसी बुक को रेफ़र कर रहे हो, अच्छे से उन बुक्स को रेफ़र करके. सो recommending books for mains, GS 1, 2, 3. हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम एंड ऑल दीज बुक्स आर गुड. लाइक जो जोग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल के लिए बताइए, ऑल ऑफ दीज बुक्स आर सफिशेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जोगटा अकेडमी हैज़ ग्रेट बुक्स. देन निधि सोनी मैम हैज़ ग्रेट बुक्स. मैम ने 2 एडिशंस निकाले हैं, उसमें भी सारा हिमाचल करंट एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिमाचल मेंस हैव बीन कवर्ड वेरी नाइसली. हीलियोस की बुक्स आती हैं, तो आपका सारा जितना भी हिमाचल है वो इन बुक्स से कवर हो जाएगा. हीलियोस की बुक्स में इट्स नॉट जस्ट हिमाचल, इट इज़ एवरीथिंग, तो उससे इंटरनेशनल रिलेशंस लाइक बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल रिलेशंस के भी जैसे देयर इज ऑलमोस्ट पूरा एन एंटायर सब यूनिट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो जो टॉपिक्स आपको बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, नेट पे दृष्टि, विजन, इतनी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से वो सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो अगर इंडिया बांग्लादेश इज़ अ टॉपिक तो वहाँ से जाके लाइक मेक योर नोट्स अच्छे से, ताकि बाद में आपको जब एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है या रिवाइज करना है तो वो सारा एक जगह पे कलेक्टेड हो. तो जो बुक्स में चीज़ें नहीं हैं उनको लाइक इनसे रेफ़र, लाइक इंटरनेट को अच्छे से यूज़ करो. इंटरनेट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन प्रेपरेशंस. मेरे को लाइक थ्रू आउट द प्रोसेस मेरे लाइक दृष्टि एंड विजन एंड दीज पेजेस दे वर सो हेल्पफुल. लाइक इनके डेली अपडेट्स आ रहे हैं, कोई जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स दे कवर एवरीथिंग. तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो जो टॉपिक्स आपको बुक्स में नहीं मिलते, बिकॉज इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. तो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है. सो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू कैन गो अबाउट इट. आंसर राइटिंग थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज बहुत लेंदी पेपर होता है और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आपसे अच्छे से मैनेज नहीं होगा वहाँ पे टाइम, कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, 8 वाले. वो पहले से अगर आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 पेपर्स तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि मेरे को 50 मिनट्स इसको देने हैं. लाइक डिवाइड योर टाइम. अदरवाइज ऐसा होता है कि एक सेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है और लास्ट वाले सेक्शन में हमें टाइम ही नहीं बचता, तो वो हम उतने अच्छे से नहीं लाइक लिख पाते. सो वी आर नॉट एबल टू डू दैट वेरी नाइसली. सो लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पूरा पेपर बैलेंस्ड वे से अटेम्प्टेड है. तो उसके लिए आपको टाइम बहुत अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसलिए डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली. लाइक पेपर उसमें सेक्शन 1 4 मार्क्स को कितना देना है वो, एंड 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में एंड इवन 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में अगर डायग्राम या फ्लो चार्ट पॉसिबल है तो बना दो, बिकॉज वो एग्जाम आपके पूरे पेपर की मोनोटनी थोड़ी ब्रेक कर देता है. सिर्फ रीडिंग से एक डायग्राम अच्छा भी लगता है, पॉइंट्स भी अच्छे से लाइक ऑब्जेक्टिव भी होता है. तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें यू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड आपको लग रहा है उतने वर्ड्स में नहीं आएंगे, तो छोटे छोटे उनको लाइक मेक सम डायग्राम और उसमें उसको छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स में डाल के लिख दो ताकि ज़्यादा मटेरियल कवर हो जाए अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है. दैट हेल्प्स. एंड 20 मार्क्स वालों में तो बिकॉज इतना सारा स्पेस देव गिवन यू राइटिंग के लिए, तो उसको फिल करना ही बहुत टफ हो जाता है. टाइम का भी बहुत कंस्ट्रेंट होता है. तो 20 मार्क्स वालों में डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड मेक डायग्राम्स. हिस्ट्री एंड ऑल में ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, बट इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया या कुछ, तो उसमें यू कैन मेक अ मैप. जैसे साउथ चाइना सी का क्वेश्चन आया था तो मैप से थोड़े आसपास वाले कंट्रीज़ बता दिए तो हाफ आपका पेज उसी में कवर हो जाता है. एंड थोड़ा उनको भी लगता है कि अच्छा ज्योग्राफी भी प्रिपेयर्ड है, तो लाइक थोड़ा लिंक अप आप कर सकते हो. 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में मेरा एक एक्चुअली स्ट्रैटेजी थी कि 4 मार्क्स वाले में 4 पॉइंट्स, 8 मार्क्स वाले में 8 पॉइंट्स. मतलब अगर पॉइंट वाइज अगर उसको लिखना हो, कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स पॉइंट वाइज नहीं हो सकते, बट द वंस दैट कुड बी. सो उनमें 4, 8 एंड 20 वाले में आई वुड स्टार्ट विद अ इंट्रोडक्शन. देन अगर पॉइंट्स हैं तो प्रोज लिखे, कॉन्स लिखे, एंड देन आई वुड कम टू अ कंक्लूजन. तो उसमें भी आई वुड ट्राई कीपिंग सम पॉइंट्स, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, फिर उनको एक्सप्लेन कर दिया. अगर टूरिज्म है उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स करके या 8-9 पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन देम नाइसली. तो विद एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स. मेंस में 8 और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में जहाँ पे अगर पॉसिबल है तो ट्राई इंसर्टिंग एक एग्जाम्पल रियल लाइफ से, करंट अफेयर्स से. इट रियली पर्क्स अप योर आंसर. एंड ओवरऑल कमिंग टू लाइक दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस का, यू शुड कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन रिविजन, बिकॉज रिवाइज नहीं करोगे तो eventually it will fade off from your mind and it will be like learning it all over again. So revision is very important. So try revising your things weekly, like दिन के end में पहले सब कुछ revise कर लिया, फिर weekend पे सब कुछ revise कर लिया. तो like try keeping that cycle on so that फिर से overall आपको फिर से सारे topics start ना करने पड़े. तो that really helps. Plan your like keep short term goals. ये नहीं कि एक साल में I'll do this. Keep your goals short term. आज ये करना है, इस वीक इतना ख़त्म करना है. तो like वो रीचेबल भी होते हैं. एंड कीप योर गोल्स रीचेबल. ये नहीं कि आज मैं पूरी लक्ष्मीकांत खत्म, बिकॉज वो नहीं होता एंड दैट इज जस्ट फिर डीमोटिवेटिंग. कीप रियलिस्टिक गोल्स एंड कीप लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स. डोंट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड उसमें मत करना, बिकॉज आप पे ही काइंड ऑफ वो चीज़ इवेंचुअली बैकफायर कर जाएगी. So I guess prelims and mains mostly is covered. So moving to the interview. Firstly, अगर आपके मेंस अच्छे नहीं भी गए हैं, you never know what happens overall. तो start preparing for your interview, especially current affairs point of view से.
read the newspaper every day, especially after your मतलब पहले भी the newspaper is very important, but mains के बाद भी don't just stop newspaper पढ़ते रहना, because current से काफ़ी कुछ पूछते हैं. If you are working, so prepare your department का वो very well, because I was working in the excise and taxation department for a year, and almost 50 to 60% of my interview was based on my department and क्या होता है department में, क्या हम करते हैं, GST, VAT. So if you are working, आप आपको एक थोड़ा benefit भी होता है कि it is your field, so you would comparatively know ज़्यादा as compared to the other person. तो उसमें आप थोड़ा लीड भी कर सकते हैं. तो मतलब अपना फील्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ताकि अगर आपसे वो कुछ भी पूछें तो आप अपने अच्छे से 2-3 पॉइंट्स यू कैन पुट अप, एक्स्ट्रा चीज़ें यू कैन टेल. डोंट स्टार्ट स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा कि 10-15 पॉइंट्स, बट अच्छे पॉइंट्स यू कैन कीप अप. वो आप खुद से प्रिपेयर करके जा सकते हो, बिकॉज आपको नहीं पता वो करंट में क्या पूछेंगे, बट ये आपके द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, तो आप अच्छे से यू कैन प्रिपेयर इसके लिए. एंड देन करंट अफेयर्स, आई पर्सनली फील दैट इट डिपेंड्स ऑन द मेंबर्स ऑल्सो. तो जैसे चेयरमैन सर वाज फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो इंटरनेशनल अफेयर्स, आर्मी, इन चीज़ों के ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे. सो इफ़ पॉसिबल अगर जैसे चेयरमैन सर का बैकग्राउंड थोड़ा देख के जाना, तो थोड़ा उससे आइडिया लग जाता है. करंट तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर, बट उनका जो फील्ड, अगर वो किसी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली रहे हुए हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा उसका. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन प्रिपेयर दोज थिंग्स वेरी वेल. डैफ में जो लिखा हुआ होगा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. अपनी हॉबीज़ लिखी हैं, आपने जो भी लिखा है उसमें प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस वेरी वेल. अगर आपका सपोज जहाँ से आप हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की अगर वो प्रॉब्लम्स पूछते हैं, या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ की वो प्रॉब्लम्स पूछते हैं, या वहाँ की कुछ स्पेशलिटीज़ पूछते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए. ये आपके डैफ में ऑलरेडी मैंशनड है, तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड क्वेश्चंस अगर आप इंजीनियरिंग से हैं तो आप एचएस में क्यों आए, तो दीज क्वेश्चंस, ये जो बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं. अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है, व्हाट मोटिवेटेड यू, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हैव गुड आंसर्स, प्रिपेयर इट वेल. मिरर के आगे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट योर एक्सप्रेशंस एंड योर जेस्चर्स, हर एक चीज़ कंट्रोल में रहे. सो वहाँ पे वो भी, और बी वेरी प्रेजेंटेबल. अपने कपड़े, एवरीथिंग, लुक एट एवरीथिंग अच्छे से, कि जो पहना हुआ है अच्छे से आयर्नड है, यू आर वेयरिंग गुड डिसेंट क्लोथ्स, शर्ट के बटन्स, एवरीथिंग, द टाई इज़ इन प्लेस, फॉर द बॉयज़, फॉर द गर्ल्स, योर साड़ी इज़ वेल प्लीटेड, या सूट है तो उसका दुपट्टा इज़ वेरी नीट. ये छोटी छोटी चीज़ें फर्स्ट इंप्रेशन में मैटर करती हैं. योर हेयर इज़ नीटली पुट अप, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वहाँ पे इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन. तो ये वाली सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड. And one more thing I would suggest is mock interviews. What happens is, वहाँ पे you are facing a new panel. तो अगर आप 2-3 panels already face करके गए हुए हो, तो वहाँ पे इट बिकम्स ईजी, थोड़ा फेमिलियर फील होता है वहाँ पे, बिकॉज पैनल में भी वो आपसे, मॉक इंटरव्यूज़ में भी दे आस्क काफ़ी, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो आपके पहले से ही बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर्ड होगा उसके लिए. एंड यू बिकम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. तो दैट आई फील रियली हेल्प्स. मैंने चंडीगढ़ में SNM, निम्बिस, मेलबर्न, आई गेव मॉक इंटरव्यूज़ इनके. भूषण सर ने भी मॉक इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज करवाए थे. सो आई गेव अ कपल ऑफ पैनल इंटरव्यूज़, एंड फिर उससे मेरे को आगे हेल्प मिली. उन्होंने बताया भी जो ड्रॉबैक्स थे, व्हाट आई कैन वर्क ऑन, तो वो ओवरऑल हेल्प कर जाता है. एंड बिकॉज इंटरव्यू से काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, 30-40 मार्क्स आप ऊपर ज़्यादा स्कोर कर सकते हो if your interview is very good. So prepare very well for your interview, and I feel that should do overall with the process. And study well, don't get distracted. बहुत सारी distractions होती हैं, थोड़े से टाइम की बात है, 1 साल, give it your all. Trust me, it is an amazing feeling to see your parents so proud. बहुत अच्छा लगता है, and to finally be done with the entire process. It's a good feeling, it's a feeling of relief. इतना टाइम मेहनत की होती है, तो मन वो भी होता है कि अच्छा बाहर जाना था, घूमना था. तो in order to achieve all of this, you will have to study really hard. तो 1 साल अपना 200% दे के देख लो, and give it your all, and all the very best to everybody who's preparing. And hard work always pays off. कुछ भी पड़ी हुई चीज़ will never go to waste. So all the very best.